Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry Ka Bachchan. Today we are moving to the second lecture of HCl, that is now hydrochloric acid. From diagram you can make it out that I am going to first teach you the preparation of hydrochloric acid. We all know hydrochloric acid is highly soluble in water. 1 volume of water can easily dissolve how much? Somewhere around 452 volumes of hydrogen chloride gas. So the best way is to dissolve hydrogen chloride in water and prepare hydrochloric acid. But जितना सुनने में अच्छा लगता है इतना easy है नहीं. And that's why we have to know that 2 arrangements were being done for the preparation of hydrogen chloride gas. पहले को वाले को बोलते हैं delivery tube arrangement and second method is called special funnel arrangement. अब क्या होता है? Let's see. We all know hydrogen chloride gas is highly soluble in water, so when you pass hydrogen chloride gas through the delivery tube, just simple delivery tube if you are going to transfer, we all know HCl gas is highly soluble in water. As it will enter into the water, what is going to happen? You are going to find as this is going to enter into the water, 1 volume of water can dissolve how much? 452 volumes of HCl. So pressure inside it will be very high, and outside the pressure is going to be, vacuum is going to be created, and due to that the whole water is going to be sucked down by this tube, because the movement always takes place from higher pressure to the lower pressure, and due to that your apparatus or your delivery tube may break down. This is called back suction. क्या हो रहा है बैक सेक्शन में? वापस देखते हैं. यहां से HCl गैस आई, जैसे ही यहां एंट्री हुई 1 वॉल्यूम कैन डिजॉल्व, 1 लीटर पकड़ रहे हो अगर आप, इट कैन डिजॉल्व 432 ml ऑफ HCl गैस, विच इज वेरी हाई. तो सडनली क्या होएगा? सडनली आप देखोगे यहां पे बहुत हाई प्रेशर हो जाएगा. अगर यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा, राइट? सो वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू द डिलीवरी ट्यूब. यहाँ से वाटर ऊपर ट्रेवल करना चालू कर देगा ड्यू टू द वैक्यूम क्रिएटेड इन इट, एंड दैट इज गोइंग टू डैमेज द apparatus, एंड दैट इज कॉल्ड बैक सक्शन. इसको प्रिवेंट करने के लिए द another way of preparation came into the picture, and that is called special funnel arrangement. अब किसी ने पूछा why special funnel arrangement is used? 2 important points I have written on the board. First thing, it provides large surface area. SA is surface area, so it provides large surface area. And second, it prevents back suction. अब कैसे ये back suction prevent करता है देखते हैं. HCl गैस वापस यहां से ट्रेवल कर रही है. Now as HCl gas is traveling, so dry HCl gas is traveling from here, but here suddenly the large surface area is there. So you are going to find that this HCl gas is going to get the large surface area and it will dissolve it into the water, right? There is going to be some vacuum which is going to be created. इसको आपको surface पे ही रखना है. जैसे ही vacuum create होएगा ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, which is called the air gap. So air is going to enter and is going to suffice down or neutralize down that vacuum, and due to that the back section is going to be prevented over here. Is that clear to everyone? So यहाँ पे जब large surface area है तो क्या होएगा? उससे यहाँ पे एक जरूर वैक्यूम क्रिएट होएगा, लेकिन उस वैक्यूम को कौन फिल अप कर देगा? हवा, बिकॉज एयर गैप इज क्रिएटेड ओवर देयर. तो हवा वहां एंट्री ले लेगी और उस वैक्यूम को ब्रेक कर देगी, एंड ड्यू टू दैट यू आर गोइंग टू फाइंड बैक सेक्शन इज गोइंग टू बी avoided or prevented. So this is what we call it, the preparation of hydrochloric acid by special funnel arrangement method. So please copy down the diagram yourself, और जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुन के अपने words में लिख लो. Now we move to the physical properties of hydrochloric acid. So फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सबसे पहले. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो टोटल विच वी आर गोइंग टू टॉक इज 4. सो टोटल आपकी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज है. वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी. फर्स्ट थिंग, it is colorless
in its pure form. Second thing we all have to know that it is slightly pungent odor. Pungent means, pungent is what onion, pungent is what garlic. So थोड़ी सी वैसी pungent smell होती है, which is sometimes not avoidable, and slightly sour taste. Acid है तो sour तो होएगा. Third is corrosive in nature. So corrosive in nature means it causes blisters on your skin. अगर skin पे गिर गई, then you are going to get blisters. The marks, burning marks कैसे होते हैं? So they are called corrosive in nature, and blister form blisters on skin. Fourth point, a solution of HCl in water forms constant boiling mixture. Very important point. So it forms a constant boiling mixture with water. So a solution of HCl in water forms a constant boiling mixture. Everyone has to know that. Okay, where boiling point is 109.8 degrees Celsius, and how much HCl is percentage is 22.2% weight. Of HCl. So let's see all the 4 points. पहला point तो यार easy है. It's colorless in pure form. Second is the odor and the taste, that is also fine. Corrosive in nature. अगर skin पे गिर जाएगी, it forms blister on your skin, जो आपको लिखना पड़े. अब ये सबसे important point, what do you mean by constant boiling mixture? देखिए, constant boiling mixture is a mixture, special type of mixture, जहाँ पे एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन का मिक्सचर बनता है जो फिक्स होता है. जैसे अगर आपने 22.2 ml, परसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पकड़ेंगे 22.2 ml क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो 100 में से 22.2 माइनस करो, कितना बचा? सो 23, दैट इज 30, 73.8 ml बचा. माइनस किया तो वो क्या है, वो वाटर है. और इस मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग 22.2% बाय वेट ऑफ HCl. ठीक है, 22.2 ml क्या है HCl, एंड 73.8 ml क्या है आपका, दैट इज गोइंग टू बी वाटर. दोनों को मिलके जो मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. तो एक्सपेरिमेंटली इट इज बीइंग प्रूव्ड दैट इफ यू आर गोइंग टू बॉइल देम so at a temperature of somewhere 109.8 degrees Celsius, what is the boiling point of water? 100 degrees Celsius. What is the boiling point of HCl? That is also lesser than 109.8 degrees Celsius. ठीक है, तो क्या होने वाला है, यू आर गोइंग टू फाइंड दोनों को जब मिक्स करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं. अब अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, सो दैट बॉइलिंग पॉइंट इज 109.8 डिग्री सेल्सियस. और जैसे ही 109.8 पे जाते हो, देन जितना वाटर इवोपरेट होएगा उतना ही आपका HCl भी इवोपरेट होएगा. मतलब 22.2 और 73.8 का रेशो is going to remain constant. It will never change, and that type of mixture is called constant boiling mixture. समझ में आया कि वापस रिपीट करूं? When you boil, its concentration or percentage is going to remain fixed at 109.8. So you cannot concentrate hydrochloric acid further by distillation. ऐसा नहीं होता है पानी उड़ जाएगा और एसिड रह जाएगी इसमें, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये परसेंटेज पे, क्योंकि दोनों इक्वली अपना परसेंटेज बरकरार रखते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. ठीक है, डाउट रहेगा तो वापस पूछना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? दैट्स व्हाई concentrated hydrochloric acid cannot be concentrated beyond certain point by distillation process, of course. बाकी दूसरे मेथड से आप कर सकते हो, स्पेशल टेक्निक से, बट नॉट बाय डिस्टिलेशन. व्हाट इज डिस्टिलेशन? या पानी उड़ जाता है और एसिड रह जाएगी तो क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. प्लीज कॉपी डाउन. नाउ लेट्स गो टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो केमिकल प्रॉपर्टीज. So let's see one by one all the chemical properties of hydrochloric acid. First is monobasic acid.
and exhibits acidic nature. तो मोनोबेसिक एसिड है, कैसे डालेंगे मालूम पड़ेगा, पानी में डाल दो, अगर सिंगल H प्लस रिलीज हुआ मतलब समझ जाने का। तो HCl को अगर हमने पानी में डिसॉल्व किया, what we are going to get, it is H plus plus Cl minus, that means single H plus is released, that means प्रूव हो गया it is a monobasic acid. So first part is very very simple, I hope clear to everyone. ठीक है, अब सेकंड पे जाते हैं, टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट एसिड, इसी के अंदर आएगा वो भी। सो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट मीन्स वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज लेस एंड वाटर इज मोर, ठीक है, उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो इसका पहला रिएक्शन देखते हैं जिसको हम लोग ए बोलेंगे। फर्स्ट रिएक्शन इज विद एसिड प्लस एक्टिव मेटल। तो एसिड प्लस एक्टिव मेटल अगर आप लेते हो तो रूल याद रखो, व्हाट इज दैट, यू गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ ओवर हियर एक्टिव मेटल इज व्हाट, एक्टिव मेटल इज, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, यहां तक ही लेना, ठीक है। सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, पहले का मेरा एक वीडियो देख लो तो समझ में आ जाएगा। सो मैग्नीशियम लिया, जिंक लिया और एल्यूमिनियम भी लिए, ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन वी आर टेकिंग अकॉर्डिंग टू योर पोर्शन। तो आप कहां से लोगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा आई। तो ये सब आप एक्टिव मेटल्स फॉर्म में ले रहे हो और इन सबको ट्रीट कर दिया किसके साथ, HCl के साथ। रिएक्शन हमको पहले से ही मालूम है, सॉल्ट प्लस वाटर, MgCl2 प्लस वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस, ZnCl2 एंड ऑफ कोर्स FeCl2। FeCl3 मत लिख देना, वापस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो whenever acid reacts with active metal and hydrogen gas is evolved, it proves that it is what in nature, acidic in nature. So A part फटाफट कॉपी कर लो। B part is, how do you know again that it is acidic in nature? We all know base plus acid gives salt plus water. बेस क्या लिया इस बार, कॉपर ऑक्साइड इज अ बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, NaOH भी ले सकते थे, बट जो आपकी टेक्स्ट बुक में वही ले रहा हूं मैं। HCl के साथ रिएक्ट किया, क्या होएगा भाई, ये हो गया CuCl2 प्लस वाटर, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड और वाटर निकाल दो। So what do you mean by neutralization? Everyone knows, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से O जाएगा, यहाँ से वापस H जाएगा, यहाँ से of course OH क्यों जा रहा है, because mainly over here ammonium chloride salt is being formed. तो water को फाइंड आउट करने का, बट एसिड में से हर वक्त H निकलता है और बेस में से हर वक्त ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइड निकलता है। दिस इज मेटल ऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोक्साइड, एंड ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर कॉल्ड बेसिस। तो ये आपका B पार्ट हो गया। C पार्ट पे जाते हैं। C पार्ट इज एसिड प्लस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का कोई भी कंपाउंड गिव्स यू व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर आपको ट्रिक मालूम है, रूल मालूम है, तो बहुत इजी है, एसिड प्लस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। देखते हैं कौन कौन से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आपके पोर्शन में। सोडियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट इज देयर इन योर पोर्शन, देन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये चार कार्बोनेट्स, एक दो कार्बोनेट है और दो आपके क्या है, बाइकार्बोनेट है। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम वी आर ट्रीटिंग विथ व्हाट, HCl।
बिकॉज किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, HCl की ना, तो HCl इज गोइंग टू बी देयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर टू एवरीवन? सो Na2 लिखा है, मतलब यहाँ पे NaCl 2NaCl पक्का, Cu अगेन CuCl2 रहेगा, ये यहाँ पे NaCl बन जाएगा तो नो प्रॉब्लम, Ca इज गोइंग टू फॉर्म CaCl2। ठीक है, तो क्या दे रहा है भाई, सॉल्ट बोलो, NaCl, ये तो कॉमन है तो लिखने की जरूरत नहीं, ये भी सब में मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, CuCl2, यहाँ पे क्या मिलेगा, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ क्या मिलेगा, CaCl2। ध्यान से देख लो, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑल द 4 केसेस। तो यहाँ पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन है, एंड बैलेंसिंग करना बहुत इजी है। ओवर हियर NaCl, हियर इट इज गोइंग टू बी H2O, बचा आपका CO2, यहाँ पे ऑफ कोर्स आपके पास हाइड्रोजन 2 है तो 2H2O कर देना एंड 2CO2 कर देना, सो इट इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड। सो दैट इज another way which is proving that it is acidic in nature. Over here carbon dioxide is being formed, released, so that is acidic in nature. यहाँ पे salt and water neutralization हो रहा है, that means one of them is acid, क्योंकि base के साथ react कर रहे हैं तो हमको मालूम है base fix है, तो another thing is going to be an acid only. So please copy down. Now let's talk about the next acidic typical acid behavior, where acid is going to react with sulfite and bisulfite. So you are again going to get salt, like last reaction, plus water. वहाँ पे CO2 मिला था, यहाँ पे क्या मिलेगा, SO2. With sulfites and bisulfites are in your portion, sodium sulfite, magnesium sulfite and sodium bisulfite. Salt क्या मिलेगा, NaCl, salt क्या मिलेगा, MgCl2, salt क्या मिलेगा, sodium chloride. Water plus sulfur dioxide is common, so that I have not written also. Next is very very important, acid when reacts with sulfide, then what you are going to get, salt plus rotten X smell, which is called hydrogen sulfide. So in observation they ask you, so that is rotten X smell is going to be obtained. 3 portion में है सल्फाइड्स, पहला है सोडियम सल्फाइड, दूसरा है आयरन 2 सल्फाइड, और तीसरा है आपका कॉपर 2 सल्फाइड। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर 2 सल्फाइड, ब्लैक इन कलर। सो व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट, ये आपको क्या मिल गया, Na मतलब 2NaCl एंड H2S, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, FeCl2 प्लस H2S, एंड यहाँ आपको मिल गया CuCl2 प्लस H2S, and of course the color will change from black to blue, so very important for observation. So please copy it down, and then we'll go for the next property, which is again typical property, that is with nitrates. The F part, that acid, if it is going to react with nitrate again, so what nitrate, here 2 nitrates are there in your portion. What you are going to get it is, one is of course the precipitate, another is nitric acid. तो एक चीज तो फिक्स है, यहाँ पे आपको एक HNO3 मिलेगा, and along with that some precipitate you are going to get it. So देखते हैं अभी एसिड, यहाँ पे वापस हमने HCl ही लेनी है, yes, because we are talking about hydrochloric acid only. नाइट्रेट्स कौन कौन से दिया हुआ है आपको, सिल्वर नाइट्रेट in your portion, and second one which is given is lead nitrate. अब दोनों के साथ रिएक्ट हुआ, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो H चला गया NO3 के, तो HNO3 पक्का, प्लस व्हाइट कलर PPT you are going to get it of whom, AgCl. So that is your white color precipitate. यहाँ पे आपको दिख रहा है Pb है, लेकिन H के साथ NO3 ट्वाइस दिख रहा है, तो 2 मार दो, सो आपको मिल गया पहले तो 2HNO3 एंड प्लस Pb Cl2, which is again going to be your white precipitate, which is soluble in hot water, right? Insoluble over here, but it is soluble in hot water. So that is reaction of acid with nitrate. उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट reacts with HCl. So Na2H2O3 plus HCl is going to give you what? It will give you NaCl. Then it is going to give you sulfur dioxide gas plus water plus sulfur. Sulfur is yellow color, PPT. But this is no more in your portion. Just आपको बता दिया, जो 11th 12th में वो लोग देख सकते हैं अगर ये देखना है तो. So this is called sodium thiosulfate.
10th क्लास के पोर्शन में नहीं है, भले टेक्स्ट बुक में अगर दिया है तो भी कैंसिल कर दो, नॉट इन योर पोर्शन, बट दिस यू हैव टू रिमेंबर इट। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टिपिकल एसिड प्रॉपर्टीज, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था HCl ऑन डिसोसिएशन इन वाटर गिव्स H++Cl-। दूसरा था एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। फिर था एक्टिव मेटल्स प्लस HCl गिव्स हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट। फिर था कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर था सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड सॉल्ट्स are going to react, then you are going to get salt plus water plus sulfur dioxide gas. Reaction with sulfides, FeS, CuS, Na2S will give you salt plus hydrogen sulfide gas. With nitrates it gives HNO3. एक volatile acid दूसरी volatile acid को produce कर रही है, याद रखो, very important part. And of course the PPT. And finally दिस वन इज नॉट इन योर पोर्शन, लेकिन लिख दिया है जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, बट 10th ICSE को ये पोर्शन में नहीं है, सो डोंट लर्न इट ऑल्सो, डोंट सी इट ऑल्सो, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू रिएक्शंस विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये मिटा देते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं ट्रिक दूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तो ध्यान से देखना। सो लेट्स गो टू नाउ द सेकेंड रिएक्शन, वी कॉल इट reaction with oxidizing agents, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अगर मैं बेसिक सिंपल फॉर्म में बोलूंगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके पास बहुत सारे ऑक्सीजन है, ये जब कॉन्क HCl के साथ रिएक्ट होता है, पहले ट्रिक लिख लेना। क्या देता है? ये देता है मेटेलिक सॉल्ट, ठीक है, प्लस वाटर देगा प्लस क्लोरीन, तो ये तो फिक्स है, ठीक है। सो ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब आपके पोर्शन में कौन कौन से? एक है MnO2 जो कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का, याद रखना, प्लस ये कॉमन है, ये तो सब में लिखने ही वाला हूं, तो बार बार नहीं लिखने की जरूरत, तो इसका ए रिएक्शन हो गया। दूसरा लिया हमने लेड डाइऑक्साइड प्लस कॉन्क HCl। तीसरा लिया हमने ट्राई लेड टेट्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं रेड लेड भी, सिंदूर, लाल सिंदूर जो होता है उसको बोलते हैं ट्राई लेड टेट्रोक्साइड और रेड लेड और सिंदूर। चौथा लेते हैं, चौथा है K2Cr2O7 प्लस कॉन्क HCl। और पांचवा लेते हैं KMnO4 प्लस ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बैलेंस बाद में देखेंगे, पहले देख लो क्या क्या मिल रहा है। बहुत इजी ट्रिक है, ध्यान से देखो। ट्रिक बता दी, मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्लोरीन, तो वाटर प्लस क्लोरीन तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब मेटल कौन सा है इसके अंदर? खाली मैंगनीज है, तो क्या मिलेगा? MnCl2, खत्म गेम। यहाँ पे कौन है मेटल? लेड, PbCl2, गेम ओवर। यहाँ पे कौन सा मेटल है? खाली लेड है, PbCl2, गेम ओवर। यहाँ पे दो मेटल है, पोटेशियम भी और क्रोमियम भी है, तो KCl प्लस CrCl3 प्लस वाटर एंड दैट, तो दो मेटल है। KCl तो याद रहेगा, क्रोमियम पहली बार कर रहे हो, द वैलेंसी इज 3, सो क्रोमियम क्लोराइड। यहाँ पे भी दो है, तो क्या क्या मिलेगा? KCl तो पक्का प्लस MnCl2, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा ट्रिक क्या है? MnO2 को बैलेंस करने का, ये 5 में से एक पक्का आता है, तो बैलेंस करना है तो याद रखो 4HCl, क्यों? 2 into 2 कर देना, तो यहाँ पे भी 2 into 2, यहाँ पे 4 into 2, यहाँ पे 7 into 2, यहाँ पे 4 into 3 मत करना, 4 into 2, पहले तीनों में 2 into 2, 2 into 2, 4 into 2, यहाँ पे भी 7 into 2, कितना हो गया? ओके। और ये लास्ट वाला खाली याद रखना है, 4 into 2 नहीं, 4 into 4, इसलिए लास्ट में लिखा है। टेक्स्ट बुक में ऊपर है, मैंने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया। सो 4 into 4, पांचों के पांचों आपके लेफ्ट के बैलेंसिंग अगर हो गए तो राइट के आपको अपने आप आ जाएंगे, खाली इसके आगे 2 डाल देना। यहाँ पे 2
इसलिए आप समझ सकते हो 4 into 2 8, 8 2 16, वैसे आप याद रखोगे। सो अपने आप आपका बैलेंस हो जाएगा। सो प्लीज कॉपी इट डाउन एंड नाउ वी गो विथ द लास्ट रिएक्शन दैट इज एक्वा रीजिया। अब एक्वा रीजिया पोर्शन में से वैसे हट गया है, बेसिक ही है, बट तो भी मैं आपको करा रहा हूं बिकॉज नाउ इट इज लॉकडाउन। सो स्कूल में किसने कराया क्या नहीं कराया चेक कर लेना। नाउ व्हाट इज एक्वा रीजिया? Aqua regia is a mixture of 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3. तो 3 parts of concentrated HCl जब 1 part of concentrated HNO3 के साथ रिएक्ट होता है तो पहले तो मिलता है आपको नाइट्रोजिल क्लोराइड, फिर मिलता है वाटर और क्लोरीन। इस बार जब आप लिख रहे हो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्लोरीन, बट क्लोरीन लिखते समय याद रखो कि इस बार आपका क्लोरीन जो है वो आप ऐसे लिखोगे, इसको बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन। सो ओवर हियर व्हाट इज एक्वा रीजिया? एक्वा रीजिया इज कॉल्ड क्वीन ऑफ केमिकल्स। Who is called king of chemicals? H2SO4 केमिकल्स का राजा है। केमिकल्स की रानी कौन है? एक्वा रीजिया। Why it is called queen? Because it is used to dissolve noble metals called gold, platinum mainly। और किसी में डिजोल्व नहीं होते गोल्ड एंड प्लेटिनम, तो उसमें डिजोल्व किया जाता है आराम से उसको। What is it? It is a mixture of 3 parts of conc HCl and 1 part of conc HNO3। कंफ्यूजन होता है कौन सा 3 है कौन सा 1 है। HNO3 में 3 लगा हुआ है, वो 3 नहीं है, वो 1 है, ये 3 है। दैट इज अ वे टू रिमेंबर। क्या मिलता है? ट्रिक दी हुई है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्लोरीन, बट इस बार सॉल्ट प्लस वाटर प्लस नेसेंट क्लोरीन। व्हाट इज नेसेंट क्लोरीन? द न्यू लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेसेंट? न्यू लाइफ। Word is derived from Nescafe. After drinking Nescafe, what do you get? You get new life. एक नई जिंदगी मिलती है। मरे हुए हो, थके हुए हो, Nescafe पिया तो न्यू लाइफ मिलती है, वहां से वर्ड लिया। Nascent. Nascent is new life. Is it clear? Just came into existence in simple language. So that is called nascent. Now, जब आप ये रिएक्शन देख रहे हो तो ये nascent क्लोरीन करता क्या है? देखो गोल्ड को कैसे डिसॉल्व करता है। गोल्ड के साथ रिएक्ट होता है 3 पार्ट्स में एंड फॉर्म करता है AuCl3। गोल्ड 3 क्लोराइड और ऑरिक क्लोराइड। प्लैटिनम के साथ रिएक्ट होता है, दैट टाइम 4 नेसेंट क्लोरीन कम्स एंड फॉर्म्स प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड। सो दिस इज कॉल्ड एक्वा रीजिया। किसी ने यूज पूछ लिया तो इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व नोबल गैसेस, नहीं नोबल मेटल्स है, बिकॉज दिस मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन। Who are those metals? ऊपर लिखा हुआ है गोल्ड एंड प्लेटिनम मेनली। तो ये हो गया आपका एक्वा रीजिया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एवरीवन हैज टू नो दैट वेरी वेरी वेल। तो प्लीज कॉपी इट डाउन। नाउ वी कम टू टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसका टेस्ट करना है तो सबसे पहले तो अमोनिया प्लस HCl ले लो। और गैस में भी किया था ये, यहाँ पे भी कर सकते हो। What you are going to get, it is the white dense fumes of ammonium chloride। ठीक है। सो पहला केस हो गया आपका अमोनिया प्लस HCl में, where glass rod dipped in ammonia solution। So glass rod dipped in ammonia solution मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाले सॉल्यूशन को आप HCl के साथ रिएक्ट करोगे and you are going to get the white dense fumes of ammonium chloride। सेकेंड रिएक्शन आप कर सकते हो जो मैंने अभी बताया, ब्लैक कलर का MnO2 लो और इसको रिएक्ट कर दो कॉन्क HCl के साथ। कितना 2 2 4 अभी सिखाया। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? सॉल्ट प्लस वाटर और आपको ग्रीनिश येलो कलर की गैस नजर आएगी। इसका मतलब समझ जाना दैट द कंपाउंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तीसरा भी हमने टेस्ट अभी किया था। इस बार हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl। तो अभी देखा था वो टेस्ट में क्या हुआ था। तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl लिया तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? इट इज HNO3 एंड वी आर गेटिंग द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड।
अभी 5 मिनट पहले किया था. So here you are getting white precipitate of silver chloride, which you can dissolve into ammonium hydroxide. तो AgCl को अमोनिया सॉल्यूशन में डाल दिया. व्हाट इज अमोनिया सॉल्यूशन? अमोनिया प्लस वाटर. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट इज इसको बोलते हैं हम लोग मेनली डाइअमाइन. डाइअमाइन स्पेलिंग में डबल एम होता है. आपकी टेक्स्ट बुक में सिंगल लिखा होगा तो रॉन्ग इट इज, बट इट इज डबल MINE. डाई मतलब दो, अमाइन मतलब ये सिल्वर. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सिल्वर ओवर हियर? 1 क्लोराइड. तो कैसे याद रहेगा? बहुत इजी है. Ag एंड Cl, ये दोनों साथ में रहेंगे. AgCl, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट आ गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इट इज. ओके, सो डाई अमाइन सिल्वर क्लोराइड. डाई, इसको एमोनिया नहीं बोलते, अमाइन डबल MINE. सिल्वर यहां से आया. व्हाट इज द वैलेंसी? 1 क्लोराइड प्लस वाटर मिलेगा. सो दिस इज ओवर हियर कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट. और इस कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट को जब हम लोग NH4OH में डालते हैं तो सॉल्युबलाइज हो जाता है, घुल जाता है उसके अंदर. एंड दैट इज very important confirmatory test for HCl. So this is also a test to distinguish between dilute HCl and dilute HNO3. So this test is also used to distinguish dilute HCl and dilute HNO3, क्योंकि यहाँ पे HCl का जो प्रोडक्ट है वो आगे जाके क्या हो रहा है? सॉल्युबलाइज हो रहा है, जो NO3 के केस में नहीं होएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट इज टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नॉट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ वी मूव टू द लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ आवर चैप्टर विच आर कॉल्ड यूजेस. यूजेस मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है. टोटल आपको 4 या 5 यूजेस दिए, एक एक करके यूजेस आपको समझा रहा हूं. फर्स्ट यूज ऑलरेडी आई हैड रिटन ऑन द बोर्ड. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्वा रेजिया, प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रेजिया. एंड एक्वा रेजिया इज यूज्ड टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स. सेकंड थिंग, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज. डाइज मींस कलरिंग एजेंट्स, ड्रग्स मींस मेडिसिन्स, एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स. देन it is used in the preparation of silver chloride, yes, and silver chloride is used for making photographic films. जो हम लोग photographic films यूज बनाते हैं वो सिल्वर क्लोराइड से बनती है. और सिल्वर क्लोराइड किससे बनता है? ऑफ कोर्स फ्रॉम HCl. देन यू कैन एक्सट्रैक्ट ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च. स्टार्ची जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से आप ग्लूकोज निकाल सकते हो, बिकॉज स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, तो आप उसमें से ग्लूकोज निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोर्स HCl. Then it is used in tanning industry. What is tanning meaning? Leather industry में use होता है ये. Okay, mainly to give the color to the leather. Then it is also used for soldering works. तो soldering में भी काम आता है ये. That is fine. कोई भी आप इसमें से 2 uses याद रखो. Then it is used for extraction of glue from the animal bones. Animal के bones को अगर आप hydrochloric acid में डालोगे तो easily you are going to find the calcium phosphate Ca3PO4 twice dissolves easily into it. एंड दैट्स वाई वहां से जो आपका गम मटेरियल निकलता है, राइट, स्टिकी मटेरियल निकलता है, दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लू. तो अगर आप वेजिटेरियन है, जैनिज्म है, सो डोंट पुट एवर गम इन योर माउथ. मे बी इट इज मेड अप ऑफ द एनिमल बोन्स. यस, मोस्ट ऑफ देम आर मेड फ्रॉम एनिमल बोन्स. एंड फाइनली इट इज यूज्ड इन द पिकलिंग ऑफ मेटल्स बिफोर गैल्वेनाइजेशन. व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? जो आपकी कार होती है उसको आयरन की पूरी कार बनती है और उसके ऊपर कौन सा दूसरा मेटल कोट किया जाता है? जिंक को कोट किया जाता है. इट्स लाइक योर मैकडोनल्ड्स वेनिला, जिसके ऊपर आपने क्या डाल दिया? चॉकलेट. तो नीचे क्या है? आयरन, व्हाइट वेनिला, और ऊपर क्या है? जिंक. जैसे एक कोटिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन. सो बिफोर गैल्वेनाइजेशन द मेटल्स
are being cleaned with the help of hydrochloric acid, and this is called pickling of metals because it removes all the impurities. अगर कोई रस्ट भी होएगा आयरन के ऊपर उसको निकाल देगा, क्लीन कर देगा, and this process by which the impurities are removed from the metals, that is called pickling of metals. So it is done by, of course, HCl, and please remember that these are the 4 different uses, जिसमें से कोई भी आप 2 uses भी याद रखोगे तो that is more than enough. So that completes the chapter called HCl. Is it clear? So see you in my next lecture where I am going to start ammonia. आओ